जी शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, I would also like to appreciate and welcome the team here जो World Junior Tennis Competition Under 14 में हमारे जो नौजवान जो बच्चे हमारे जीत कर आए हैं, and I would like to appreciate the Honourable Minister sitting right next to me because इतने बरसों के बाद अगर हम पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई है तो यकीनन हम देख सकते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनकी कितनी इसमें ज़ाती तवज्जो है और फोकस है, दैट ही इज़ ट्राइंग द यंग जो स्पोर्ट्स के अंदर बच्चे हैं उनको कितना ज़्यादा वो कर रहे हैं पुश टू मेक अस प्राउड इंटरनेशनली, और इन बच्चों ने क्वालिफाई किया है तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट दीज किड्स हु आर हियर। सर, बात हो रही है आज जो मौजू है, शुरू तो हमारे एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने इस बात को किया, लेकिन सर पार्लियामेंट ने इस बहस को शुरू नहीं किया। And I want to put this on record that Parliament is not responsible for creating this chaos. Parliament is not responsible for creating this crisis. However, अगर Parliament इसमें involve की जाएगी, Parliament को इसमें drag किया जाएगा या Parliament को कोई dictate करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान के आईन में जो Parliament का इस्तेहकाक है, जो पार्लियामेंट के की जो एस्टीम जो उसका एक प्रेस्टीज है, उसके जो शिके हैं या आर्टिकल्स हैं, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ लेजिस्लेटर, आई not only have that right to speak and defend the parliament, I will also defend the constitution of Pakistan because I, as a member of the National Assembly, am under oath. So, sir, this is my duty to defend, to protect, to preserve this very constitution of Pakistan. And I shall continue doing that. Yeah. Sir, यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं. I would not like to repeat what has already been said on the floor of this august house. But, sir, recently, एक judgment, एक honorable judge of the Supreme Court की आई है. और वो judgment तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी थीं जो बड़े दिल को लगी और जो मैंने लिख भी ली, और मैं चाह रही थी कि मैं वो भी उन ऑनरेबल जज साहब की तरह जो लिखी हुई उनकी तहरीर है। सर, उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, जजमेंट तो अपनी जगह है। उन्होंने सर लिखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पब्लिक ट्रस्ट इज इरोडेड व्हेन द कोर्ट इज परसीव्ड एज पॉलिटिकली पार्टिजन, जजेस एज पॉलिटिशियंस इन रोब्स। So this is written by an honorable judge of the Supreme Court. None of the members sitting here have said this or written this somewhere, but an honorable judge of the Supreme Court. He says something else, which I'd like to quote here, and I quote, "Preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial." Which is why, sir, हम ये कहते हैं कि judges को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए. They cannot, the honorable judges, and I'm again, I want to repeat each time I say judge, I want to say honorable. I do say my lord, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, कि with utmost respect we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. My honorable colleague here was talking about some articles of the Constitution, and this discussion has started because again the honorable judge is trying to intervene in the matters of the parliament. Again the honorable Chief Justice of Pakistan is trying to undermine the parliament of Pakistan. Again the Chief Justice of Pakistan forgets the trichotomy of power. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets the separation between judiciary, legislature, and the executive. Again, the Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that, there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today,
but it has repercussions for future, sir. हम आज भी इस फ्लोर से ये कहना चाहेंगे कि खुदारा, the Supreme Court of Pakistan should not be seen as the Terminator who's trying to destroy the constitutional supremacy, who's trying to play with the sanctity of Parliament, that is the mother of all institutions in a democracy. The Supreme Court, or the Honorable Supreme Court of Pakistan, should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. हम यहाँ लड़ने तो नहीं आए हैं सर, ना ये इम्प्रेशन कभी आ सकता है, लेकिन सर हम जिस तरीके से मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने कहा कि हम अपनी पार्लियामेंट का दिफा करेंगे, हम अपनी पावर्स का दिफा करेंगे, हम अपने राइट्स को इस्तेमाल करेंगे, और उसी में एक आर्टिकल है जो मैं, खैर ऐसे तो आर्टिकल 175 है, जो आर्टिकल 175(3) जो है वो सेपरेशन की बात करता है, और जिसमें जुडिशरी को शायद अभी भी समझ नहीं आ रही है, कुछ लोगों को जुडिशरी के अंदर, मैं सबको नहीं इल्ज़ाम देती हूँ, लेकिन सर इसके बाद फिर Article 176 है, which I'd read earlier, but at the cost of repeating myself. The Article 176, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura Parliament, and so on and so forth. Sir, कहने का मकसद ये है कि the Supreme Court of Pakistan comprises of the Honorable Chief Justice and the other honorable brother judges. और जिस तरीके से यहाँ कहा गया है कि हमने जो कहानियाँ सुनी हैं, the disputes and the conflicts between the honorable brother judges, we would also like कि ideally ये तमाम मसाइल ख़त्म हो. We would also like, though this is not what a parliamentarian should be saying, but when a parliamentarian is dictated by the Honorable Supreme Court, then the parliamentarian has the right to also advise the Honorable Supreme Court to pay some heed and some attention to its own doings, to the environment that it has created within its own circle. And that is what we'd like to send as a message to the Honorable Chief Justice of Pakistan. At the same time, Speaker Sahab, ये जो ऑडियो लीक्स की बात यहाँ पर हुई है, दो मैं प्रिंसिपली इन ऑडियो लीक्स के बिजनेस से डिसएग्री करती हूँ. एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी जमात भी इस तरह के फेल के अमल की मजम्मत करती है. किसी की भी जो प्रिवेसी है वो इन्वेड नहीं होनी चाहिए. किसी की भी प्राइवेट लाइफ में कोई मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है. लेकिन सर, जब किसी भी तरीके से ये लीक सामने आई और उन लीक्स का जो मतन है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू द कॉन्टेक्स्ट, I am condemning this very fashion of leaks and this very fashion of recording people's private conversations. But sir, here we are talking about a private conversation taking place between the son of a former Chief Justice of Pakistan and a politician. और सर वो गुफ्तगू बड़ी शर्मनाक गुफ्तगू है. वो गुफ्तगू काबिल मज़म्मत गुफ्तगू है. वो गुफ्तगू हमारे मुआशरे के इखलाकी जो ढांचा है उसकी अक्कासी कर रहा है. And if we accept that गुफ्तगू, अगर हमने उस गुफ्तगू को एक्सेप्ट किया, then we are not a civilized society. अगर हमने उस गुफ्तगू को आज रद्द नहीं किया, then ऐसी बहुत सारी बातें रिकॉर्ड होती रहेंगी, सामने आती रहेंगी, और हम नम होंगे और हम ढीठ हो जाएंगे और फिर हम बेशर्म हो जाएंगे. तो हमें डरना चाहिए उस वक्त से जब ये बेशर्मी हम पे तारी हो. लिहाजा हमें ऐसी बिलो द बेल्ट, ऐसी इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू की मजम्मत करनी चाहिए. और क्यों करनी चाहिए सर? आई टोटली एग्री कि किसी का बेटा है किसी से बात कर रहा है, पर वो किसका बेटा है?
former Chief Justice of Pakistan, the very Chief Justice of Pakistan who collected money in the name of dam. What is the job of a Chief Justice to collect money for dam? What is the job of the Chief Justice to do this? Why do they interfere in the matters of executive? Why do they interfere in the matters of legislature? Why are they rewriting the Constitution of Pakistan? Are they rewriting the Constitution of Pakistan? This is a question that you should put before them, sir. Aap pooche as the custodian of this house. Ask the Honorable Supreme Court and the Honorable Chief Justice rather, that are you trying to write or rewrite the Constitution of Pakistan? Because the Constitution of Pakistan that I have read and I am protecting and I am defending and I have the right and the duty to preserve does not allow a Chief Justice to collect money for any dam in Pakistan. Unless, like I said earlier and repeated by an honorable colleague, he's making a damn fool out of the people of Pakistan. And that's what he did. So honestly speaking, sir, टाइम आ गया है कि अगर कोई इदारा अपने रास्ते से भटक जाए, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती क्या है, अगर कोई इदारा ये भूल जाए कि पार्लियामेंट सॉवरन है, तो हम उसे याद दिलाएं और आपके जरिए याद दिलाएं कि द सॉवरन इंस्टीट्यूट इज पार्लियामेंट एंड दिस पार्लियामेंट has powers under the constitution. ये powers कोई हमने अपने हाथ से नहीं लिखी, हमें इस आइन में जो मुतफ़क़ा तौर पर 1973 में पास हुआ उसमें मौजूद है. ये हम और आप बैठ के आज नहीं लिख रहे हैं. We all have faith in this. मैं PCO जजेस की कहानी में नहीं जाना चाहती. अभी भी बात हुई है उस जज की जिसने एक डिक्टेटर को ये इख्तियार दिया कि वो आइन को बदल दे. अभी भी बात हुई शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की. हम एक अरसे से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो जुडिशियल मर्डर है उसके के लिए इंसाफ मांग रहे हैं. 12 बरसों से एक सदारती रेफरेंस इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है. हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता और ये हमें यहाँ डिक्टेट करते हैं कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस शुड बी सेंट टू देम. Why should the proceedings of this house be sent to the Chief Justice of Pakistan upon his dictation? They will not be sent, sir, and they should not be sent. Why? Because this constitution protects us. This constitution. बात ये नहीं है कि आप proceedings भेज दें. बात सही है कि रोज ये मैं बात कर रही हूँ तो ये आ रहा है ना टीवी पे, हम सब बात कर रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, अखबारात में आ रहा है, ये मीडिया गैलरी यहाँ बैठी है और ये सारी चीजें जो है ये लिखते हैं. मुझे कम से कम कुछ एक अच्छे जर्नलिस्ट तो बचे होंगे ना जो सही प्रोसीडिंग्स लिखते होंगे सर. तो लिखते हैं ये प्रोसीडिंग्स अखबारात में और खासी एक्यूरेट प्रोसीडिंग्स होती हैं. जिस तरह हमें अदालत की प्रोसीडिंग्स अखबारात से पता चलती हैं, इसी तरह अदालत हमारी, बल्कि हमारी प्रोसीडिंग्स लाइव जाती हैं बिकॉज वी हैव नथिंग टू हाइड. वी डोंट हैव टू हाइड any equation of the judgment, may it be 3-2 or 4-3. We don't have to hide this. हम कोई सीक्रेट्स नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, मगर जो सीक्रेट्स रख रहे हैं, जो सीक्रेसी बना के रख रहे हैं, आप अपने सीक्रेट्स हमें बताएं, आप अपने सीक्रेट्स फाश करें हम पर. हम वो नुमाइंदे हैं जो यहाँ आते हैं तो अवाम को ये तसल्ली होती है कि हमारी बात इस ऐवान पर हमारे नुमाइंदे पहुंचाएंगे और हम कहते हैं कि हमें लाइव बताएं, हमें दिखाएं लाइव कि आज क्या शाजिया मरी पाकिस्तान में पानी की किल्लत पे बात करती है. आज ये गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब एक आमरी के ब्रिज के हवाले से अपना कॉलिंग अटेंशन लाए कि आज वो अपने उस मसले पर बात करते हैं कि नहीं करते. आज क्या हम उस जज को कंडेम करते हैं जिसने डैम फंड के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और वो भाग गया. सर उसी जज के बेटे की रिकॉर्डिंग है जो चीफ जस्टिस था. अब आप इमेजिन करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा जब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम का तकाजा करता है तो वो शख्स, उस शख्स का वही बेटा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा था तो उन्हीं के जरिए इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ होगा. ये सोचने की बात है, ये बात सोचने की है. Thank you. So in the end, I would just like to
I would like to remind the Supreme Court of Pakistan that it needs to look at the number of cases pending before. बहुत सारे लोग इस वक्त इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जमानतों के तकाजे कर रहे हैं जिनके उनकी भी सुनवाई नहीं होती। जिस तरह के फैसले आए हैं, अब उन पर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने नस्ला टावर का पहले भी जिक्र किया है, मैंने PKLI हॉस्पिटल में एक साबिक चीफ जस्टिस के इंटरेस्ट का जिक्र किया है। तो सर, जब लोग अपने हुदूद से बाहर जाते हैं, आइन को डिसरिगार्ड करते हैं, तो पाकिस्तान में केओस होता है। हमारी ये होगी इस अदालत से कि पहले हमारे एक बड़े अहम इदारे ने ये गलती की कि पाकिस्तान को डीपोलिटिसाइज करने की कोशिशें हुई। पाकिस्तान को इतना डीपोलिटिसाइज किया कि पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप को उसकी आवाम से दूर रखा गया, फिर चाहे फांसी से, चाहे जिला वतनी से, चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर, लेकिन इस तरह की कोशिशें होती रही। इस मुल्क को पॉलिटिसाइज करना है, डीपोलिटिसाइज नहीं। इस मुल्क को डेमोक्रेसी देनी है, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का और उनकी मुदाखलत और उनकी दखल अंदाजी को खत्म करना है। So sir, this is what Pakistan needs. Pakistan needs to follow the constitution and respect the parliament. And when I say we follow the constitution, we respect all institutions that are mentioned in the Constitution of Pakistan. But those institutions should also work within the domain mentioned in the Constitution of Pakistan. Thank you, sir. Thank you.